Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softech. Now, let's start with the topic. So today we are going to discuss about counters and time delays. This is a very important topic. Counter means any device that counts. Counter is a device that is used to count, or it is a mechanism. Counter is a device that performs a mechanism of counting or phenomena of counting. Counting is like 1, 2, 3, 4, 5. Okay. A device that performs this task is known as a counter. Okay. It may be a hardware device. Time delays. Time delays means any operation like X is an operation which is going to be happen. After that, another operation that Y will be there. So there must be a time gap. There must be a time gap in between them as per the requirement. Let's take an example of metro और लिफ्ट. दोनों में से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. Once the door opens, it remain open for some time and then it will be closed. Door open, then there is some time gap and then door closed. Okay. Similarly, this time gap is known as delay, and delay is very important in real world applications. Means अगर आप 2 + 2 3 + 4 इस तरीके की कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, वहां पर अगर आप डिले नहीं डाल रहे, दैट इज नॉट अ बिग इशू. बट अगर आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन चाह रहे हो, लाइक दिल्ली मेट्रो है, लिफ्ट का एग्जांपल लिया हमने, ओके, या फिर हमने वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, कोई भी एग्जांपल जो हमने लिया है, वहां पर डिले डाला जाता है. मींस आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया तो कुछ टाइम कंज्यूम हो. ऐसा नहीं है कि तुरंत ही वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, जिससे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. Okay, so what kind of problem it will be? Like door open है already, close नहीं हुए and metro जो है वो चलने लगी, तो open door के साथ चल पड़ी. This is a problem. और metro आई, स्टेशन पे रुकी, door open ही नहीं हुआ, डायरेक्टली आगे चल पड़ी. मीन्स ना ओपन हुआ ना क्लोज हुआ. और मेट्रो आई, स्टेशन पे रुकी, डोर ओपन नहीं हुआ, आगे चली गई. मींस जो डोर क्लोज था वो वैसे का वैसे ही रहा. मींस जिसको उतरना था या किसी को और आगे जो है जर्नी कंप्लीट करनी थी, चढ़ना था ट्रेन में, वो भी बोर्ड नहीं कर पाया. सिमिलरली लिफ्ट, आपने थर्ड नंबर पे फ्लोर पे जाना है तो थर्ड नंबर फ्लोर पे रुकेगी, 1 मिनट का टाइम लगेगा, सेटल होगी लिफ्ट, उसके बाद डोर ओपन होगा एंड देन ओपन होने के बाद वो 1 मिनट 2 मिनट ओपन रहेगा एंड देन इट विल बी क्लोज्ड. ऑल्सो there is another mechanism, sensor mechanism, that will sense that is there any obstacle between the door. अगर कोई obstacle आता है डोर के बीच में, चाहे वो मेट्रो का है या वो लिफ्ट का है, तो क्या होगा, उस obstacle को सेंस करेगा और सेंस करने के बाद what will happen, then it will be reverse the process. reverse the process का मतलब क्या होगा, प्रोसेस रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया, अगर वो ओपन था, ओपन से क्लोज की तरफ जा रहा था, तो क्लोज ना होकर वो वापस ओपन हो गया. ओके, ओपन से क्लोज की तरफ जा रहा था तो वो क्लोज ना होकर वापस ओपन ही हो गया. सो इससे क्या है, जो ऑब्स्टेकल बीच में था, मे बी देयर मे बी एन ह्यूमन, सो उसको हार्म ना हो. सो ये सारी चीजें डिले से इंट्रोड्यूस की जाती हैं. मोर ओवर, लेट अनदर एग्जांपल. ओके, रियल लाइफ एग्जांपल एक और जो है डिस्कस करता हूं मैं अभी आपके साथ, then you will get more clarity. Recently you have heard about Israel. Israel country का न्यूज आप लोगों ने सुना भी होगा. So what is happening over there, there is a war situation. Okay, and war situation में क्या था, like this is a Israel country and this is another one. These are
sending some missiles to this country. Like this is Israel, okay, and this is some terrorists, okay. So they are launching some missiles towards the Israel, and Israel already placed an anti-missile system over here. Once this system diagnoses or detects any missiles coming towards them, so it will automatically launch the anti-missile system. Now, see, if there is a person, ये सिस्टम ऑटोमेटिक ना होकर अगर कोई मैनुअल सिस्टम होता मींस एनी पर्सन ओवर देयर, सो व्हाट विल हैपन, maybe that person is not aware that particular of time, maybe that person having another call, maybe that person is not well, maybe that person is not attentive towards that particular location, okay, वो किसी और लोकेशन की तरफ व्यू कर रहा है, okay, एंड किसी और लोकेशन से आ रहा है. नाउ अब क्या है बेसिकली, पहली बात तो ऑटोमेटिक करने से माइक्रो प्रोसेसर की नीड क्या हुई, ऑटोमेटिक कर दिया तो यहाँ पर ह्यूमन एफर्ट की जरूरत ही नहीं रही. प्लस जो ह्यूमन एफर्ट्स है उसमें एरर होने के चांसेस होते हैं, प्रोसेसर में एरर होने के चांसेस नहीं होते हैं. मोर ओवर, इफ दिस रिस्पॉन्स इज नॉट टाइम बाउंड, if this response is not time bound, then what will happen, this missile is gonna hit and it will damage, it will cause damage. So now what we have learned till, like, there is a system and delay. The significance of delay, it depends on the application whether the delay is minimum or maximum or moderate, whether the delay is minimum, maximum or moderate. If you are dealing with any missile system, okay, or any aircraft launching system, then the delay must be minimum, okay. If you are dealing with any sending message, receiving message, normal chat application, delay can be maximum. अगर मैसेज 1 मिनट तक नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरे मिनट में आ जाएगा. बट ऑन द सेम पार्ट अगर एक मिसाइल सिस्टम है, आपने 1 मिनट के बाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, 1 मिनट में तो वो मिसाइल सिस्टम यहां से यहां पहुंच जाएगा, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर कवर कर लेगा 1 मिनट में, ओके. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द डिले, ओके. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द काउंटर, देन डिले इन डिटेल. Counter is designed simply by loading appropriate number into one of the registers and using increment or decrement instructions. Like R is a register and you set it 10, either incrementing or decrementing. Incrementing means 10 से 100 तक जाएगा तब terminate करना है, या 10 से 0 आएगा तब terminate करना है. So it will be depending on the input कि आप उसको increase कर रहे हैं या decrease कर रहे हैं. See in the flow chart, first of all you initializes the content of register, then you update the value, whether you want to display or not, it is a optional one. Then you have to check, is that finding out, if yes then proceed, else repeat. तो ये क्या होगा, repeat हो रहा है. It is again a loop task. काउंटर भी लूप की तरह काम कर रहा है, but it perform counting as well, okay. लूप इज एस्टैब्लिश टू अपडेट द काउंट. ये जो लूप है ये किस लिए बनाया गया है, ये काउंट को अपडेट करने के लिए बनाया गया. ईच काउंट इज चेक्ड टू डिटरमिन वेदर इट हैज रीच्ड फाइनल नंबर, इफ नॉट द लूप इज रिपीटेड. until unless the termination condition is there, the loop will be repeated, means the counter will be repeating its task. Then next is timer delay. Timer is a device and delay is a phenomenon. There is a procedure used to design a specific delay. अब एक प्रोसीजर है डिले इंट्रोड्यूस करने का, लाइक डोर ओपन और क्लोज के बीच का ये जो टाइम है, इस टाइम को कैसे जनरेट किया जाएगा, प्रोसेसर इस टाइम पर क्या करेगा, ओके. सो उसका प्रोसेस हम अभी समझेंगे कैसे होगा. इट इज अ प्रोसीजर used to design a specific delay and is similar to that used to set up an counter. बिल्कुल काउंटर की तरह ही डिले काम करता है. हम इसमें जितना रिक्वायर्ड टाइम है आपको, लाइक आपको 1 मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए, 10 सेकंड चाहिए, 50 सेकंड चाहिए, सो उतना टाइम कैलकुलेट करके
that time equivalents with the number of instructions. Okay, उस instructions को execute कराया जाएगा. How? I'll tell you. Here a register is loaded with a number. किसी रजिस्टर में नंबर डालेंगे. Depending on the time delay required, कितना time delay आपको चाहिए, and then the register is decremented or incremented whatsoever until it reaches to 0 or maximum. जो भी लॉजिक आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, I minus minus, I plus plus, okay? By setting up a loop with conditional jump instruction. This conditional jump क्या होगा? ये termination instruction होगी. Otherwise, loop will enter in an infinite sequence. Okay? This loop causes a delay. ये जो आप loop बनाएंगे, इस loop से एक delay introduce होगा, depending upon the clock period of the system. Now, significance of clock period of system is what? Like you have three devices, A, B, and C. Clock speed of A is 2 megahertz, clock speed of B is 20 megahertz, and clock speed of C is 2 gigahertz. So, according to the clock speed, the frequency of the system will change because time is inversely proportional to frequency. If you change the frequency, the time period will also change. With the increase in frequency, decrease in time means if you execute an instruction X, there is an instruction X. This instruction is executing on A, on B, and on C. So, as the instruction is same, but the frequency of the systems are different, so accordingly, time taken by the system is changed. 2 megahertz में maximum time लगेगा and 2 gigahertz में minimum time लगेगा to execute this instruction. So what will happen? Let the time is T1, T2 and T3 for execution of this X. So T1 is greater than T2 is greater than T3. Is that clear to everyone? Now, to design a time delay, we have three different techniques. Either one register or by two register means register pair, and the last is using a loop. Loop means repeating the instructions. Register में क्या करेंगे? हम सिर्फ काउंटर लेंगे, काउंटर को डिक्रीज कराते रहेंगे. ओके, लूप से क्या होगा? आप कुछ सेट ऑफ bunch of instructions लेंगे, उन instructions को repeatedly execute कराते रहेंगे. Now we have to calculate that how much time we need. Okay, कितना टाइम हमें चाहिए. For example, ये ऑपरेशन टाइम T1 पर स्टार्ट हो रहा है और टाइम T2 पर आपको इसको कंप्लीट करना है. तो T1 और T2 के बीच में जो टाइम है, that you have to calculate. And according to that calculation, you have to insert the instructions. For example, like आपने किसी को कॉल किया and that person said, okay, call me after 5 minutes. Then what will you do? You will wait, see the clock, and after 5 minutes you will call again. यही होगा. आप 5 मिनट का अगर उसने कहा है तो 5 मिनट के बाद कॉल करने के लिए क्या करेंगे? वेट करेंगे, क्लॉक को, वॉच को देखते रहेंगे. जैसे 5 मिनट हो जाएंगे उसके बाद आप वेट करेंगे. सो 5 मिनट तक कुछ इंस्ट्रक्शन गई मींस आपने कुछ और काम कर लिया. तो या तो प्रोसेसर को हम कोई और काम देंगे या फिर प्रोसेसर को बिजी रखेंगे. तो दो केस हो सकते हैं, या तो आप कोई और टास्क परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज आप वेट करेंगे. ओके, सो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रोसेसर को यही दो काम कर सकते हैं. बट दिस 8086 इज नॉट मल्टीटास्किंग, सो प्रोसेसर को हम बिजी करेंगे. प्रोसेसर को हम क्या करेंगे? बिजी करेंगे मींस T1 और T2 के बीच में प्रोसेसर को कुछ वेट कराएंगे. ओके, और ये वेट कराएंगे मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, प्रोसेसर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता रहेगा, जिसका रिजल्ट जो है वो आपको आउटपुट में कहीं अफेक्ट नहीं करेगा. इन इंस्ट्रक्शंस का जो रिजल्ट है वो कहीं कभी भी यहाँ या यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा. ओके, नाउ अगर ये जो इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पर 2 इंस्ट्रक्शंस लगेगी, 200 लगेगी,
2000 लगेगी। कितनी इंस्ट्रक्शंस लगेगी वो कैसे पता लगेगा? एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम चाहिए और टोटल आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, उसी को डिवाइड करके हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। ओके, फॉर्मूला बताऊंगा मैं भी आपको, कॉन्सेप्ट समझिए। सो टाइम डिले यूजिंग वन रजिस्टर। एक रजिस्टर में क्या होगा, आपने रजिस्टर को लोड करा, डिक्रीज करा एंड उसको बार बार रिपीट करते रहे। सिंपल, रजिस्टर को लोड करा आपने, देन डिक्रीज करा, चेक करा जीरो हो गया, नहीं हुआ वापस चले जाओ, फिर जीरो करो। तो ये क्या हो रहा है, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है सिंगल रजिस्टर से। तो स्मॉल डिलेस, इफ यू वांट स्मॉल डिलेस, तो यहां से सिंगल रजिस्टर से आ सकते हैं, बिकॉज सिंगल रजिस्टर में जो वैल्यूज है वो भी आपकी 8 बिट की स्टोर होगी। 8085 के केस में, 8085 के केस में जो आपके पास रजिस्टर है वो 8 बिट का है, तो एक रजिस्टर में कितनी बिट स्टोर होगी? 8 बिट। तो मैक्सिमम जो डिक्रीज हो सकती है वो भी 8 बिट के अंदर ही करोगे आप। 8086 करते हैं अगर आप, तो 16 बिट हो जाती है, थोड़ा ज्यादा डिले हो जाएगा। ओके, मींस इफ यू टॉक अबाउट टाइम डिले फॉर्मूला, देन इट विल बी व्हाट, टोटल डिले मींस जो कंप्लीट आपको टाइम चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू टाइम टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन आउटसाइड द लूप एंड इनसाइड द लूप। जो लूप से बाहर की इंस्ट्रक्शन है, यानी कि ये वाली, ये है I1 जो लूप से बाहर है, और ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है बार बार एग्जीक्यूट हो रही है, दिस इज I2। बिकॉज लूप के अंदर की जो इंस्ट्रक्शन है वो तो मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। सो सी, तो टाइम टू रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा? दैट इज नंबर ऑफ टी स्टेट्स इनटू क्लॉक पीरियड। क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम इज f, जो मैंने अर्लियर एग्जांपल लिया था, 2 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज, 5 मेगाहर्ट्ज, 50 मेगाहर्ट्ज, जो भी है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। टाइम डिले इन द लूप इज t states into loop t states and n10. n10 is the maximum count, equivalent decimal number of the hexadecimal count loaded in the delay register. रजिस्टर में जो वैल्यू अपलोड हो रही है वो तो हेक्साडेसिमल है, बट आपको चाहिए डेसिमल में काउंट। आप तो घड़ी में देखते हैं 5 मिनट, आपको 5 मिनट हेक्साडेसिमल में क्या है, वो कितना टाइम है हमें नहीं पता, तो हम हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो वहां पे कांस्टेंट ये n10 यूज करेंगे। नाउ सी एन एग्जांपल, लेट देयर इज द 3 इंस्ट्रक्शंस MVI C, FFH। FF is the maximum value of 8 bit, तो वो मैक्सिमम वैल्यू आपने एक रजिस्टर C में डाल दी। रजिस्टर C लो, B लो, X लो, कोई भी लो। ओके, तो एक इंस्ट्रक्शन हो गई लूप से बाहर। फिर एक इंस्ट्रक्शन आपकी DCR। DCR मींस डिक्रीमेंट C। अब ये 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, बिकॉज इसमें कोई ऑपरेंड तो है नहीं। देन JNZ लूप, तो JNZ अगर ये इंस्ट्रक्शन 10 बार चलनी है, मान लीजिए लूप 10 बार चल रहा है, तो JNZ 9 बार चलेगा, जब वापस जाएगा, और एक बार ये जंप नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा। मींस इंस्ट्रक्शन 9 बार तो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगी और एक बार अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगी। ओके, सो कैलकुलेशन कैसे होगी देखिए, लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम इज 2 मेगाहर्ट्ज। लेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम इज 2 megahertz. So 1 upon 2, that is 0.5 microsecond. Clock period is of 0.5 microsecond. Time to execute MVI means outside the loop. T states for MVI, how many T states? 7. Why 7? 4 output fetch, 3 read. 4 plus 3 7. Read क्या करना है आपको यहाँ पे? FF, ये डेटा। ओके, into clock period. Clock period is 0.5, so 7 into 0.5, that is 3.5 microsecond. So this is the time taken by MVI instruction to get executed. Then these instructions, loop के अंदर की जो instructions है, loop T states into N10, टाइम पीरियड कितना हुआ? 0.5, सेम ऊपर के नीचे के लिए क्योंकि मशीन सेम है। इंस्ट्रक्शंस कितनी है आपके पास? ये 10 प्लस 4 14। 10 मीन जब तक ट्रू होगा एंड 4 इज फॉर डिक्रीमेंट। 4 मीन्स ऑपकोड फेच, यहां पर भी ऑपकोड फेच है। ओके, 4 जो ऑपकोड फेच है वो, और 10
JNZ jump if not zero के लिए जो 10 T states लगती है. Okay. Then next is 255. 255 is the decimal equivalent of FF. 255 is the decimal equivalent of FF. Okay. Solve the multiplication. Then you will get 1785 microsecond. 1785 microsecond. Okay. But there is an issue. Like अब एक बार तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, जंप नहीं करा रहे हैं, तो हमें ये माइनस करनी पड़ेगी. सी adjusted loop delay is equals to time to execute loop instructions. Okay. TL 1785 जो ऊपर वाला टाइम था 1785 जिसमें टोटल काम हो रहा है, और ये वाली MVI इंस्ट्रक्शन वो इसमें से हमने माइनस करेंगे. Why? सॉरी MVI नहीं, ये नॉट जंप 7. ओके, इसमें से माइनस करेंगे हम उसके टी स्टेट्स को. देन इट विल बी 1783.5 माइक्रोसेकंड्स. 1783.5 microseconds. It will be added with the MVI instructions. The first instruction. So total will be 1787 microseconds. If this is just a lift or a metro door, then it can be taken as 1.8 microsecond. Okay, but if this belongs to any missile operation, then it will strictly be 1787 microsecond. Why so? Because it depends on the particular or specific application that what is the significance of decimal. Okay, means if we talk about एक नंबर की हम बात करते हैं 3.14 पाई, वैल्यू ऑफ पाई. ओके, जनरली आप 3.14 से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो. डेसिमल के बाद 2 प्लेस लेते हैं हम अपना कोई एरिया कैलकुलेट करने के लिए. मान लीजिए डब्बा है, उसके अंदर आपको चावल भरना है, चीनी भरना है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, दैट विल बी ओके. बट वहीं पर अगर एक्यूरेसी हो, अगर लाइक बात करते हैं मून, मार्स, किसी इसरो मिशन की, मिसाइल मिशन की, जहां पर आप बहुत डिस्टेंस है, कैलकुलेशंस है, तो वहां पर 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं, 10 डेसिमल प्लेसेस, 12 डेसिमल प्लेसेस तक जाते हैं, सो दैट the accuracy must be there. Okay, so it depends on the system कि आप इसको 1.8 माइक्रोसेकंड लेंगे या 1.787 माइक्रोसेकंड. okay, because 1.1787 और 1.8 माइक्रोसेकंड इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस आ जाएगा, one will be taken as 1800 microsecond and another will be 787 microsecond. So there will be a difference of 13 microsecond. So this 13 microsecond will be a very huge count or very huge number in case of high speed objects. Okay. Now next is time delay using register pair. If we talk about register pair, so it means 16-bit data. Earlier we have used 8-bit. So 8-bit में डेटा आया था FF. 16-bit में डेटा क्या आ जाएगा? tetraf. That is the maximum value. Okay. Instruction will be DCX, not the DCR. Why? Because it works on a register pair. Now see how it works. One instruction outside the loop and few instructions within the loop. One is outside the loop and few instructions inside the loop. Again, clock frequency is 2 megahertz. Time period is 0.5. Decimal equivalent of 2384. This is the 2384 address which is to be loaded. उसका decimal equivalent निकाल लिया. ये decimal equivalent, that is N10. This will be multiplied over here. Time to execute LXI. LXI में कितना टाइम लगेगा? T states check करेंगे. 10 T states लगेगी. Okay. 10 T states will be used there. So 10 into 0.5, that is 5 microseconds. Then in the delay, 6 plus 4 plus 4 plus 10.
6 plus 4 plus 4 plus 10, that is 24. 24 T states into time period into decimal equivalent. So it will gives you 109104 microsecond. It will be taken as 109 millisecond. 109 millisecond, and this is 5 microsecond. Both of them will be added, then it will be the total time delay. Means ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन, ये पूरा का पूरा बंच इतना डिले इंट्रोड्यूस कर रहा है. ओके, नाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस द डिले ऑफ 2 मिनट्स. तो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस में ये काउंट बढ़ाना पड़ेगा आपको. जैसे ही काउंट बढ़ा दोगे आप एड्रेस का, तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन बढ़ जाएगा. लाइक आपको कहा कि 2 बार ये कोई पार्क है, उसके 2 राउंड लगाओ. 2 राउंड लगाने में जो टाइम कंज्यूम हुआ, और वहीं पर कहा जाए कि 20 राउंड लगाओ. 20 राउंड लगाने में जो टाइम कंज्यूम हुआ, बिकॉज यू आर रनिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड. फ्रीक्वेंसी जो है, जो स्पीड है, फ्रीक्वेंसी वो सेम है. सो 2 rounds or 20 rounds, time will be more in the 20 rounds. So we will increase or decrease the delay by increasing or decreasing the number of instruction execution. Means looping mechanism को कंट्रोल करके आप इंस्ट्रक्शन के ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हो. कम एग्जीक्यूट करनी है, ज्यादा एग्जीक्यूट करनी है, so that आपको डिले जितना रिक्वायर्ड है उतना ही मिले. It is very difficult, listen carefully, it is very difficult to achieve 100% accuracy over here. 100% accuracy अचीव करना बड़ा मुश्किल है. Why? मेरे को 2 मिनट का डिले इंट्रोड्यूस कराना है, तो हो सकता है 1.99 सेकंड का डिले मैं कैलकुलेट कर पाऊँ. इसके बाद अगर कुछ बढ़ाऊं तो वो 2.001 का हो जाए. ओके, दैट विल बी पॉसिबल. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको एग्जैक्टली 2 मिनट का 2 सेकंड का डिले इंट्रोड्यूस कराना हो और उतना ही मिल जाए. सो डेसिमल में आंसर आ सकता है. ओके, दिस इज द रेफरेंस फ्रॉम वेयर आई हैव प्रिपेयर्ड दिस स्लाइड्स. दिस इज ऑल फॉर counters and timer delays. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again.